हेलो फ्रेंड्स, गिल्स मैंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 15th ਮਾਰਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਪੀਸੀਐਸ, ਐਸਐਸਸੀ, ਸੀਜੀਐਲ, ਸੀਐਚਐਸਐਲ ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼। ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਟ 1938, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਟ ਜੋ 1938 ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਂਜਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਰੂਵਲ ਫਾਈਨਲੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ FDI ਹੈ, FDI ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 49% ਤੋਂ 74%। ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵਲ ਸ਼ਿਪ ਸਰਦੂਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਵਲ ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਪੋਰਟ ਲੁਈਸ ਮੋਰੀਸ਼ੀਅਸ ਕੈਪੀਟਲ ਪੋਰਟ ਲੁਈਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਇਹ ਗਿਆ ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਇਹ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਤੇ। IRDAI ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਖੁੰਤੀਆ ਹੈਡ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਚੋਲਾ MS ਜਰਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚੋਲਾ MS ਜਰਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਸਿੰਪਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਸਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ SBI ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਥਾਲੀ ਰਾਜ becomes first Indian woman cricketer to score 10,000 international runs। ਮਿਥਾਲੀ ਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜਿਸਨੇ 10,000 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਨਸ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰੀਸਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਕਾਟ ਮੋਰੀਸਨ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਯੋਸ਼ਿਦਾਈ ਸੁਗਾ ਔਰ USA ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਿਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਕੁਆਡ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਆਡ ਸਮਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਆਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ? 4 ਕੰਟਰੀਜ਼। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲੀਗ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਫਤੌਰਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। USA ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਲਾਇਡ ਆਸਟਿਨ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ? ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮਾਜੂ ਵਰਗੀਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਦਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਮਿਲਟਰੀ ਆਫਿਸ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਜੂ ਵਰਗੀਸੀ। ਹਾਮਿਦ ਬਾਕਾਯੋਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਆਈਵੋਰੀ ਕੋਸਟ ਦੇ। ਆਈਵੋਰੀ ਕੋਸਟ ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਟੇ ਦੀ ਆਈਵੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਈਫਾਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 5,957 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੁਚਿਤਰਾ ਦੁਰਾਏ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਟੂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਰਿਸੀਵਡ ਕਿੰਗ ਭੂਮੀ ਬੋਲ ਵਰਲਡ ਸੋਇਲ ਡੇ ਅਵਾਰਡ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਭੂਮੀ ਬੋਲ ਵਰਲਡ ਸੋਇਲ ਡੇ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ? ਇਹ ICAR ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ। ठीक है जी।
हुण इसी ऑर्गेनाइजेशन नूं अवार्ड जो दिता जाना सी तो अवार्ड किसने कलैक्ट किया रिसीव किया कहांगे तो इंडियन एंबेसडर टू थाईलैंड सुचित्रा दुराई। एन लिंडे स्वीडन के फॉरन मिनिस्टर ने OSCE के चेयरपर्सन बनाए गए हैं 2021 के लिए OSCE के चेयरपर्सन बनाए गए हैं क्योंकि 2021 की प्रेजिडेंसी किस दे लवे है स्वीडन के लवे। इसी दी 2022 की प्रेजिडेंसी पोलैंड कोल है और 2023 की नॉर्थ मार्सेडोनिया के कोल। ऑर्गेनाइजेशन है सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन फ्रांस। हैडकुआटर वियना ऑस्ट्रिया दे विच और 57 मैंबर कंट्रीज ने। दादी हृदय मोहिनी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ने स्पिरिचुअल मूवमेंट ब्रह्मा कुमारीज दे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर इन्हां दी रिसेंटली डेथ हो गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्हां द्वारा साबरमती आश्रम तो डांडी तक की शुरू किया गया मार्च 12 मार्च को इंडिया एट द रेट ऑफ 75 सैलीब्रेशन के तौर पर। इस तो इलावा याद रखांगे कि डांडी मार्च 1930 के विच इसी दिन किया गया सी। 12 मार्च तो शुरुआत हुई सी 1930 के विच, यानी कि 91 साल पूरे हुए ने। कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री टारगेटेड to provide internet connectivity to 5,519 ग्राम पंचायत कि बेसिकली 5,519 ग्राम पंचायत नूं नवंबर 2021 तक कनैक्ट कर दिता जाएगा भारत नेट स्कीम के अंडर। नितिन गडकरी MSME मिनिस्टर द्वारा 2 टेक्नोलॉजी सेंटर्स विशाखापट्टनम और भोपाल दे विच और 3 एक्सटेंशन सेंटर्स श्रीनगर जयपुर और नगौर दे विच इनॉग्रेट किए गए। जापान द्वारा की किया गया कोलैबोरेशन इन स्पेस दे लई स्पेस कोलैबोरेशन कह सकते हैं किहड़ी कंट्री दे नाल इंडिया दे नाल कोलैबोरेशन किया। इस तो इलावा इंडिया जापान लूपैक्स मिशन ते काम कर रहे हैं लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है जी। स्विट्जरलैंड वोटेड इन द फेवर ऑफ प्रपोजल बैनिंग बुरका एंड नकाब। बेसिकली पब्लिक प्लेसिस दे विच बुरका नकाब बैन करन दे लई स्विट्जरलैंड ने फेवर दे विच प्रपोजल रेफरेंडम दे विच कहांगे वोट किया। चाइना रशिया द्वारा एग्रीमेंट साइन किया गया टू बिल्ड इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन। चाइना और रशिया मिलके इंटरनेशनल लूनार रिसर्च सेंटर बनाएंगे स्टेशन बनाएंगे। ओलिव रेडी टर्टल्स कित्थे पाए गए ने घड़ी माथा बीच दे उत्ते पाए जाते हैं। ये कित्थे है ये उड़ीसा दे विच है। हर साल इत्थे ओलिव रेडी टर्टल आते हैं। सैमसंग इलैक्ट्रॉनिक्स द्वारा एक इनोवेशन लैब सैटअप की गई दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी दे विच। अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू द्वारा 5 मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर वैनस नूं फ्लैगड ऑफ किया गया है। ठीक है जी। कित्थों? ईटानगर तो। यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ द्वारा इरीगेशन प्रोजेक्ट अर्जुन सहायक लॉन्च किया गया जिसके अंडर लछूरा डैम धसन रिवर के उत्ते बनाया जा रहा है। अनाउंस किया गया कि यह डैम जल्दी ही बन के रेडी हो जाएगा और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसनूं इनॉग्रेट करेंगे। इस तो इलावा स्टेट एनिमल बर्ड और स्टेट ट्री। यूपी स्टेट एनिमल स्वैम्प डियर है। स्टेट बर्ड सारस क्रेन है। स्टेट ट्री अशोका ट्री है। उत्तराखंड स्टेट एनिमल मस्क डियर। स्टेट बर्ड हिमालयन मोनल और स्टेट ट्री बुरांस। वेस्ट बंगाल स्टेट एनिमल फिशिंग कैट है। स्टेट बर्ड वाइट थ्रोटेड किंग फिशर है और स्टेट ट्री है चाइतन स्टेट ट्री है। ठीक है जी। अच्छा, इस तो इलावा अपने स्टैटिक पोर्शन दे विच स्टेट एनिमल स्टेट बर्ड स्टेट ट्री खत्म होने वाले ने। इस तो बाद टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं आप बुक्स की। बेसिकली आप बुक्स नवंबर तक दियाँ रिवाइज कीतियां हुई ने
दिसंबर तो शुरुआत करांगे। दिसंबर दे विच जो बुक्स आईयां ने उस तो बाद जनवरी फैबररी इन्हां बुक्स के बारे डिस्कस करते चलांगे। ठीक है जी। नैक्सट चलते हैं अज दे फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट न्यूज़ दे वल। हू इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ रोड मैप फॉर एंटरप्रीन्योर। अ रोड मैप फॉर एंटरप्रीन्योर इस बुक नूं किन्ना द्वारा लिखिया गया है। इस बुक दे राइटर ने जितेंद्र गुप्ता। जितेंद्र गुप्ता फिफ्थ ऑप्शन जितेंद्र गुप्ता द्वारा इस बुक नूं लिखिया गया। ठीक है जी। इस तो इलावा राजीव मोहापात्रा। राजीव मोहापात्रा आप डिस्कस की सी बुक आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस एंड फ्यूचर ऑफ पावर 5 बैटल ग्राउंड्स बुक किन्ना ने लिखी सी राजीव मल्होत्रा। अनिंद्या दत्ता द्वारा बुक लिखी गई सी एडवांटेज इंडिया बेसिकली टैनिस के उत्ते बुक सी आप डिस्कस की सी हिस्टरी ऑफ द इंडियन टैनिस एडवांटेज इंडिया। ए के राजन एग्रीकल्चरल एक्ट्स 2020 इस बुक के राइटर ने। अरविंद सिंह आप लास्ट वीक ही डिस्कस किया पेन फ्री माइंडसैट इस बुक के राइटर ने। ठीक है जी। नेक्स्ट है नीति आयोग सबमिटेड द फर्स्ट लिस्ट ऑफ हाउ मैनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स दैट विल बी प्राइवेटाइज्ड अंडर सेंटर्स प्राइवेटाइजेशन स्कीम। न्यूज़ डिस्कस करने तो पहले डिस्कस करते हैं बजट के विच। सो नहीं याद होगा आप बजट डिस्कस किया। बजट के विच अनाउंस किया गया कि 4 बैंक नूं प्राइवेटाइज किया जाएगा। एक इंश्योरेंस कंपनी नूं भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। ठीक है जी। इस तो इलावा होर आप डिस्कस किए सी कि LIC नूं प्राइवेटाइज किया जाएगा या होर भी डिफरेंट चीज़ां प्राइवेटाइज कीतियां जाणगियां। ठीक है। हुण इसी दे विच नीति आयोग ने अनाउंस किया है कि किन्नी पब्लिक सैक्टर यूनिट्स नूं प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो 12 पब्लिक सैक्टर यूनिट्स नूं प्राइवेटाइज किया जाएगा। ठीक है जी। ये हालांकि इस दसिया नहीं गया है सरकार द्वारा कि किन्ना नूं किया जाएगा, लेकिन अनाउंस कर दिता गया कि 12 नीति आयोग ने इसनूं अनाउंस किया है। ठीक है जी। हुण इस दे विच कोई भी पब्लिक सैक्टर यूनिट आ सकती है। ठीक है। तो नीति आयोग की अगर आप गल करते हैं नीति आयोग डिस्कस कर लें। नीति आयोग प्लैनिंग कमीशन नूं रिप्लेस करके बनाया गया सी। ठीक है जी। नीति आयोग प्लैनिंग कमीशन नूं रिप्लेस करके कदों बनाया गया सी? तो 2015 दे विच। नीति आयोग किसी आर्टिकल के अंडर आंदा है तो नहीं आंदा। नीति आयोग किसी भी आर्टिकल अंडर नहीं आंदा, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। नीति आयोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। नीति आयोग के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होंदे ने, जिस तरीके नाल प्लैनिंग कमीशन के हैड प्राइम मिनिस्टर होंदे सी। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने और एज ए कैबिनेट मिनिस्टर तक का रैंक होंदा इन्हां दा। ठीक है जी। इस तो इलावा CEO की गल करते हैं तो CEO ने अमिताभ कांत। नीति आयोग द्वारा रिसेंटली DG बॉक्स बनाया गया सी, ये याद रखांगे, इंपोर्टेंट बनेगा। नीति आयोग द्वारा जिहड़े इंडैक्स जारी किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया इनोवेशन इंडैक्स, ठीक है, अटल रैंकिंग्स जारी की जांदियां ने, तो ये भी याद रखांगे। गुड गवर्नेंस इंडैक्स कह सकते हैं, इंपोर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट है सेंटर विल सेल इट हाउ मच स्टेक इन टाटा communication out of which 10% will be bought by Pentaton Finvest Limited। बेसिकली टाटा कम्युनिकेशंस दे विच इंडियन गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका किन्ने परसेंट स्टेक है जो कि अनाउंस किया गया बेचा जाए। ठीक है जी। किन्ने परसेंट स्टेक बेचा जाएगा अनाउंस किया गया है, तो यह अनाउंस किया गया 26.12%। थर्ड ऑप्शन 26.12%, टोटल 26.12% स्टेक बेचा जाएगा। इस 26.12% को 2 हिस्सों के डिवाइड कर दिता गया है। 16.12% तो सेल के उत्ते होएगा कि कोई भी कंपनी खरीद सकती है, बाकी का रहिंदा 10% ये कौन खरीद रही है? ये खरीद रही है पेनाटॉन फिनवेस्ट लिमिटेड। ठीक है जी।
क्वेश्चन कई तरीके ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਲਵੇ ਪੂਰਾ ਸਟੇਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ % ਸਿਰਫ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 16.12%, ਕਿੰਨਾ % ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੈਨਾਟੋਨ ਫਿਨਵੈਸਟ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ 10%। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। नेक्स्ट है विच नेवल शिप रीच्ड द एनसी रनाना मडागास्कर विद एन इंडियन नेवल ट्रेनिंग टीम ऑन बोर्ड। बेसिकली मडागास्कर जो कंट्री है इत्थे एक पोर्ट है एनसी रनाना। ठीक है, इत्थे कोई इंडियन नेवल शिप गई है, एक तो की करेगी वो, एक वो प्रोवाइड करवाएगी ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग टीम गई है उसदे विच मडागास्कर आर्मी ਨੂੰ ट्रेन करेगी। और सैकेंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ਦੇ ਲਈ गई है, तो ਕਿਹੜੀ शिप है? जलाशय, INS जलाशय। ठीक है जी। हुणे आपां डिस्कस किया सी मॉरिशस के बारे, हुण आपां डिस्कस कर रहे हैं मडागास्कर के बारे। ठीक है, इस तो इलावा मडागास्कर कैपिटल एंटानारिवो, करंसी एरियारी चलती है। ठीक है, इस तो इलावा आप डिस्कस किया सी INS कारंज के बारे कुछ दिन पहले। सबमरीन है, पहले तो ये इंपोर्टेंट बनेगा, सबमरीन है कुछ दिन पहले इसनों कमीशन किया गया, तो किनवी ये तीसरी सबमरीन बनी है जिसनों कमीशन किया गया। ठीक है, तीसरी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं INS कारंज है जो ये 6 का हिस्सा है, 6 प्रोजेक्ट 75 के अंडर जो बनाई जा रही ने मैजागॉन डॉक लिमिटेड द्वारा। ठीक है जी। सुमेधा और कुलिश, INS सुमेधा और INS कुलिश दोनों इंपोर्टेंट बनन गई, दोनों कितने गई सी? बांग्लादेश गई सी। बांग्लादेश के 71 ईयर सैलीब्रेशनस के लिए, सॉरी 50 ईयर्स, बांग्लादेश की 50 ईयर्स इंडिपेंडेंस सैलीब्रेशनस के लिए INS सुमेधा और कुलिश गई सी। इस तो इलावा याद रखांगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाएंगे किस दी विजिट ते? बांग्लादेश की विजिट ते। विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कुरियर्स। बेसिकली इंटरनेशनल कुरियर्स नूं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल बनाया गया है। इंडिया दे विच पहला है, इस करके भी इंपोर्टेंट है। तो कित्थे बनाया गया? ये बनाया गया है बेंगलोर एयरपोर्ट। फर्स्ट ऑप्शन बेंगलोर एयरपोर्ट। बेंगलोर एयरपोर्ट जिसनों आपां कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम तो जानते हैं, याद रखांगे। ठीक है जी। इस तो इलावा गुवाहाटी एयरपोर्ट नूं आपां किस नाम तो जानते हैं? बोरदोलोए गोपीनाथ एयरपोर्ट, बोरदोलोए गोपीनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट। हैदराबाद एयरपोर्ट नूं आपां जानते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली की गल करते हैं तो दिल्ली दे विच आपां कहने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट है, अच्छा इस तो इलावा बाकी इंपोर्टेंट न्यूज़ इन्होंने एयरपोर्ट्स के बारे जो जिस करके ये न्यूज़ के रहे ने वो भी इंपोर्टेंट बननगे। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली दिल्ली एयरपोर्ट नूं अवार्ड दिता गया सी, आपां डिस्कस किया सीगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू PwC's 24th एनुअल ग्लोबल CEO सर्वे, बेसिकली एनुअल ग्लोबल CEO सर्वे एक सर्वे रिलीज़ किया गया है जिसके अनुसार मोस्ट अट्रैक्टिव ग्रोथ डेस्टिनेशन फॉर बिजनेस। बेसिकली कि अगर CEO सर्वे है तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सर्वे कि जिसके अंडर अगर कोई कंट्री दे विच इन्वेस्टमेंट करनी है तो सब तो ज़्यादा ग्रोथ किहड़ी कंट्री दे विच होएगी? तो USA द्वारा इस लिस्ट नूं टॉप किया गया। ठीक है, सैकेंड प्लेस ते चाइना रहा, थर्ड नंबर ते जर्मनी रहा, फोर्थ नंबर ते UK रहा और फिफ्थ नंबर ते इंडिया रहा। डायरैक्टली इंडिया का रैंक पूछा जा सकता है, इंडिया 5वें नंबर ते है। ठीक है जी। किन्नवा एडिशन है सर्वे का? तो 24th एनुअल ग्लोबल CEO सर्वे। ठीक है जी।
लाइन वाइज इंपॉर्टेंट बनने क्योंकि अजकल जो एग्जाम्स ने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो पूछा जा सकता है कि टॉप के उत्ते यूएसए अगर यूएसए है तो सैकेंड नंबर पर किहड़ी है, ठीक है, या पूछा जाएगा कि फोर्थ नंबर पर किहड़ी है, क्योंकि अगर इंडिया फिफ्थ नंबर पर है तो इंडिया तो उपर किहड़ी कंट्री है तो यूके है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हु इज अपॉइंटेड एज सीईओ एंड एमडी ऑफ अर्सील। अर्सील की है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कंपनी इंडिया लिमिटेड, इसे इंडिया भी है। अर्सील एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के एमडी सीईओ कौन बनाए गए ने? बनाए गए ने पल्लव मोहापात्रा, ठीक है। वैसे डायरैक्टली ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं बनती है पर जिन्होंने बनाया गया उन्होंने करके न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। पल्लव मोहापात्रा रिसेंटली न्यूज़ के रह चुके हैं। ये होंगे सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी, इन्हों रिप्लेस करके माधव वेंकटा राव रिसेंटली बनाए गए हैं, ठीक है। इस करके इन्हों का नाम न्यूज़ के सीगा और दोबारा हाईलाइटेड होया इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है जी। मातम वेंकटा राव बनाए गए ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ और इन्हों पल्लव मोहापात्रा अर्सिल का एमडी सीईओ बनाया गया, ठीक है। बाकी तीन ऑप्शंस इंपॉर्टेंट न्यूज़ ने डिस्कस कर लेने। ल्यू ऑटन्स ऑबिचुरी एक डिस्कस करांगे तो संजय गोयल एक अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन, अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन की है एक टैलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है बेसिकली कि टैलीकॉम सैक्टर के जो टावर्स वगैरह देखते हैं आप या उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होंगे ने उन्होंने बनाती है एक अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन एटीसी कंपनी के एशिया पैसिफिक रीजन के लिए प्रेजिडेंट बनाए गए ने संजय गोयल नूं प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया एशिया पैसिफिक रीजन का। अरविंद पांडे टुक ओथ एज काउंसिल मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड इन संस्कृत लैंग्वेज। बेसिकली उत्तराखंड के बारे कुछ दिन पहले आप डिस्कस किया कि तीरथ सिंह रावत नूं नवा चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनने तो बाद की किया 11 नवे मिनिस्टर बनाए ने अपनी कैबिनेट दे विच 11 नवे मिनिस्टर्स नूं ऐड किया। तो जिहड़े ये 11 मिनिस्टर्स ऐड किए गए हैं उन्होंने विचों एक नाम इंपॉर्टेंट बनेगा अरविंद पांडे का। अरविंद पांडे क्योंकि इन्होंने संस्कृत दे विच शपथ लीती है, संस्कृत दे विच शपथ लीती है, ठीक है। इस तो पहले हालांकि इंडिया के संस्कृत के शपथ लेना आम गल है, फिर भी यह नाम इंपॉर्टेंट बनेगा। पर अगर आउट ऑफ इंडिया गल करते हैं तो सूँ याद होएगा पर डिस्कस भी किया हुआ काफ़ी बार इंडिया के विच, चलो मैं दस रहा तुसीं दसोगे, इंडिया के विच चीफ गैसट बन के आना सी, इंडिया के विच चीफ गैसट के लिए अपॉइंट किए गए सी, जिन्होंने अपॉइंट अनाउंस किया गया सी कि इन्हों बुलाया गया। हालांकि उन्होंने विजिट बाद विच कैंसल हो गई सी तो उन्होंने इनवाइट किया गया सी। उन्होंने संस्कृत विच शपथ लीती सी, पहले परसन बने सी आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। उन्होंने नाम कमेंट बॉक्स में दसना है, ठीक है। दूसरा नाम जिन्होंने संस्कृत शपथ लीती सी न्यूजीलैंड के विच एक मिनिस्टर ने, न्यूजीलैंड के विच वो मिनिस्टर सीगे, उन्होंने शपथ लीती सी तो उन्होंने नाम भी दसना है। ल्यू ऑटन्स डेनमार्क तो बिलोंग करते सी। इन्होंने ऑडियो कैसेट बनाई सी, इन्वेंट की सी 1960 के विच। इन्हों की रिसेंटली डेथ हो गई है, ठीक है। जी अपने घरे डैक वगैरह होंगे सी, आप क्या करते डैक उन्होंने जी कैसटा पैंदियां सी, उसकी इन्वेंशन किन्होंने की सी? ल्यू ऑटन्स ने। इन्हों की रिसेंटली डेथ हो गई। नेक्स्ट है हु हैज़ इनॉग्रेटेड 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल इन वर्चुअल मोड। बेसिकली ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल का 4th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया। तो यह वर्चुअल मोड के विच ऑर्गेनाइज किया गया तो किन्होंने ने इसनूं इनॉग्रेट किया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल मोड के विच ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल नूं इनॉग्रेट किया गया, ठीक है जी। इस तो इलावा बाकी नाम इंपॉर्टेंट न्यूज़ के विच ने डिस्कस करते हैं। तो प्रहलाद सिंह पटेल, कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल, दामो मध्य प्रदेश तो लोक सभा MP ने। इन्हों द्वारा डिजिटाइजेशन अनाउंस की गई है, इनॉग्रेट की गई है 4 करोड़ 50 लाख पेजिज की ऑफ रिकॉर्ड्स एंड एग्जीबिशन ऑफ महात्मा गांधी एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
बेसिकली महात्मा गांधी के उत्ते जिहड़े रिकॉर्ड्स ने तकरीबन 18 करोड़ पेजां के उत्ते लिखे हुए, ठीक है। हुण वो लिखी हुई जिहड़ी हिस्टरी है वो पेजिज वगैरह आपां नॉर्मली अगर बुक्स वगैरह भी घरे रखते तो खराब हो जांदियां ने कुछ टाइम बाद, अगर उन्होंने प्रॉपर केयर ना की जाए। तो हुण उस डाटा नूं डिजिटाइज किया जाना है। तो डिजिटाइज करने के लिए इनॉग्रेशन की है प्रहलाद सिंह पटेल ने। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, इन्होंने अनाउंस किया है कि जो सैकेंड स्क्वाड्रन है रफाल जेट्स का, सब तो पहले रफाल जेट्स किहड़ी कंट्री तो आ रहे ने, फ्रांस तो आ रहे ने, किन्ने आ रहे ने, 36 आ रहे ने, ठीक है। 36 दे विचों जो पहली स्क्वाड्रन दे विच आए सी, ठीक है, पहले 5 आए थे, उस तो बाद नहीं पहले 1 आया, उस तो बाद 5 आए, फिर 3 आए, फिर 3 आए, इस तरीके नाल आए सी, ठीक है। तो यह उन्होंने कित्थे रखा गया सी, उन्होंने फर्स्ट स्क्वाड्रन नूं रखा गया सी अंबाला एयरफोर्स दे विच, हरियाणा दे विच, ठीक है। हुण सैकेंड स्क्वाड्रन आना है, अनाउंस किया गया है कि सैकेंड स्क्वाड्रन है जिहड़ा रखा जाएगा हसीमारा एयरबेस वेस्ट बंगाल दे विच। डायरैक्ट पूछा जा सकता है हसीमारा एयरबेस कित्थे लोकेटेड है, हसीमारा एयरबेस कित्थे लोकेटेड है, तो वेस्ट बंगाल दे विच लोकेटेड है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अ बजट 2020-21 के अनुसार कितनी स्टेट्स और यूटीज दे विच वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम नूं लागू किया जा चुका है। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंडर कितनी स्टेट्स और यूटीज नूं ऐड किया जा चुका है बजट के अनुसार। तो बजट के अनुसार 32 स्टेट्स और यूटीज नूं ऐड किया जा चुका है, ठीक है। न्यूज़ दे विच क्यों है, न्यूज़ दे विच है क्योंकि एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। फूड मिनिस्ट्री लॉन्च मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन, मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन फूड मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बजट बेसिकली इस दे अंडर राशन दिता जाएगा, राशन कार्ड होल्डर्स नूं डाटा इकट्ठा किया जाएगा और बजट के अनुसार 32 स्टेट्स और यूटीज नूं इस दे विच कवर किया जा चुका है। और किहड़ी स्टेट या यूटी पेंडिंग है, तो नोटेड है कि असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और वेस्ट बंगाल, यह 4 स्टेट्स और यूटीज पेंडिंग ने और इन्हों भी जल्दी ही जोड़ लिया जाएगा इस स्कीम के अंडर, ठीक है। असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है ऑड वन आउट कि फॉर एग्जाम्पल पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी इज नॉट एडेड इन वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप मीटिंग ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज, कॉन्टैक्ट ग्रुप इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज, ठीक है। बेसिकली इस मीटिंग नूं केड़ी कंट्री ने होस्ट किया, तो ब्रिक्स की मीटिंग है तो ऑब्वियस है इंडिया ने होस्ट किया है, ठीक है। सिंपली याद रखेंगे प्रेजिडेंसी के बेस के उत्ते होंदा है। फॉर एग्जाम्पल G7 की अगर कोई मीटिंग होनी है तो ब्रिटेन होस्ट करेगा क्योंकि इस साल की प्रेजिडेंसी ब्रिटेन दे लवे। G20 की अगर कोई मीटिंग होनी है तो वह केड़ी कंट्री होस्ट करेगी, इटली होस्ट करेगी। इस साल की प्रेजिडेंसी इटली को है। ब्रिक्स की इस साल की प्रेजिडेंसी इंडिया को है, ठीक है। इसी तरीके नाल याद रखांगे डिफरेंट ग्रुप्स के रिलेटेड, ठीक है। हुण अगर गल करते हैं कि ब्रिक्स की इस मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, किसने होस्ट की है, इंडिया ने होस्ट की है। वर्चुअली इस दे विच लीडर्स द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, ठीक है। इस तो इलावा अगर गल करते हैं ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स का 13th एडिशन इस साल ऑर्गेनाइज किया जाना है। 13th समिट इंडिया होस्ट करेगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। स्कीम्स थीम रहेगी उसकी समथिंग ब्रिक्स एट द रेट 15, तो पहले डिस्कस की हुई है ब्रिक्स एट द रेट 15, ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं बाकी कंट्रीज, ब्रिक्स कंट्रीज की ही मैंबर ने। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स के 5 मैंबर कंट्रीज ने, इंडिया, ब्राजील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। 2008 के विच ब्रिक्स बनाया गया सी, इंपॉर्टेंट बनेगा। जो बनाया गया सी इस दे विच ब्रिक होंदा सी, ब्रिक, ठीक है। कमेंट बॉक्स में तुसीं दसना है कि जो एस है यानी कि साउथ अफ्रीका है, इस दे विच किहड़े साल दे विच ऐड किया गया सी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है
कि जिथे ये ऐड किया गया सी तो वो साल समिट कित्थे होया सी, समिट किहड़ी कंट्री दे विच होया सी, ये भी कमेंट बॉक्स दे भी दसना। नेक्स्ट है वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर फोगाकू, वर्ल्ड दा मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर फोगाकू बन के रेडी हो चुके हैं रिसर्च ऑपरेशंस के लिए। इसनू किहड़ी कंट्री ने डेवलप किया है, तो यह वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, किहड़ी कंट्री ने बनाया, जापान ने बनाया। ठीक है, अगर इंडिया का पूछा जाए याद रखांगे इंडिया का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि, परम सिद्धि कुछ टाइम पहले ही आप डिस्कस किया होया। इंडिया का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर किहड़ा है, परम सिद्धि है। ठीक है जी, इस तो इलावा बाकी ऑप्शंस के रिलेटेड कुछ न्यूज़ ने डिस्कस कर लेने। सब तो पहले इसी न्यूज़ में डिटेल डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर फुगाकू बनाया गया केड़ी कंपनी द्वारा, रीकेन और फुजित्सु इंस्टीट्यूट्स द्वारा बनाया गया। 6 साल लगे ने इसमें बना के रेडी होने विच, और इसकी स्पीड है 500 मेगाफ्लॉक्स, 500 मेगाफ्लॉक्स। इसका नाम माउंटेन है एक फूजीयामा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माउंटेन फूजीयामा केड़ी कंट्री दे विच है, तो माउंटेन फूजीयामा भी जापान दे विच है और इसके नाम के उत्ते इसका नाम फुगाकू रखा गया। चाइना द्वारा जैंगमो डैम की अप्रूवल दी गई है। जैंगमो डैम बनाया जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर के उत्ते, ब्रह्मपुत्र रिवर के उत्ते तिब्बत दे विच, जो कि अरुणाचल प्रदेश के नाल बॉर्डर शेयर करेगा एक तरीके नाल। ठीक है जी, इस करके न्यूज़ दे विच है। इंडियन परस्पैक्टिव के उत्ते थोड़ा इंपोर्टेंट बनेगा क्योंकि इंडिया इसके खिलाफ करेगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया के लिए नॉन बेनीफिशियल रहेगा, इंडिया को नुकसान है इसके उत्ते, बॉर्डर एरियाज में कैप्चर करना है चाइना के लिए ईजी हो जाएगा। तो इस करके इंपोर्टेंट बनेगा जैंगमो डैम। जैंगमो डैम किस इलाके के बनाया जाएगा पूछा जा सकता है, या किस रिवर के उत्ते, तो ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर को चाइना के की कहा जाता है, यारलुंग जैंगबो के नाम के नाल ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना के जानी जाती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स के तुसी दसना है कि ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत के किस नाम के नाल जानी जाती है। तिब्बत के इसका अलग नाम है, बांग्लादेश के सॉरी बांग्लादेश नहीं कहांगे, तिब्बत के दसना तुसी। चलो तिब्बत के इसका की नाम है, अफगानिस्तान बामियान बुद्धा। बेसिकली अफगानिस्तान के प्लेस है बामियान वैली। बामियान वैली दे विच की हुंदा सी, बुद्धा दे स्टैचू सीगे। ठीक है, बुद्धा दे स्टैचू सीगे, बुद्धा दे लॉर्ड बुद्धा, उन्हां दे स्टैचू नूं बामियान बुद्धा कहा जाता सी। उन्हां नूं तबाह कर दिता गया सी, डिस्ट्रॉय कर दिता गया सी तालिबान द्वारा। ठीक है, 6th सेंचुरी दे मोनूमेंटल स्टैचू सीगे। तां हुण एक 3D प्रोजैक्शन के नाल स्टैचूज बनाए गए ने 55 मीटर हाइट दे। ठीक है, सिंपली याद रखांगे बामियान बुद्धा इज रिलेटेड टू विच कंट्री, अफगानिस्तान। ठीक है, हाइट कितनी है, तो 55 मीटर। बामियान बुद्धा स्टैचू किस सेंचुरी तो बिलोंग करते हैं, तो 6th सेंचुरी तो बिलोंग करते हैं। ठीक है, इस तो इलावा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इजराइली मिलिट्री, इजराइल द्वारा एक एक्सरसाइज की गई है ग्रीस और सिप्रस के नाल। ग्रीस सिप्रस 3 कंट्रीज, इजराइल ग्रीस सिप्रस, तीनों ने मिलकर एक्सरसाइज कंडक्ट की है, नोबल दीना। ठीक है, यूएसए द्वारा टर्की को रोकया गया 30 हैलीकॉप्टर्स देने के लिए, अटक नाम के हैलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को देने के लिए। बेसिकली टर्की ने पाकिस्तान के नाल डील साइन की अटक 12 हैलीकॉप्टर्स की, कि पाकिस्तान अटक 12 हैलीकॉप्टर्स खरीदेगा सी, 30 हैलीकॉप्टर्स टर्की तो। ठीक है, यूएसए ने इसनूं रोक लिया। ठीक है, हुण एक कंट्री खुद दे हैलीकॉप्टर्स किसी कंट्री को बेच रही है, तो दूसरी कंट्री किमें रोक सकती है। इसका कारण है याद रखांगे कि इन्हां हैलीकॉप्टर्स दे विच जो इंजन है वो अमेरिकन है, वो अमेरिका का इंजन है, अमेरिका के इंजन यूज किए जाते हैं इन्हां हैलीकॉप्टर्स दे विच। इस करके अमेरिका इसनूं रोक सकती है। ठीक है, अमेरिका ने टर्की को इस डील दे विच कहांगे इंप्लीमेंट करन तो रोकया गया। सिंपली अटक 12 हैलीकॉप्टर्स न्यूज़ दे विच सीगे, किहड़ी कंट्री ने बेचने सी पाकिस्तान नूं, याद रखांगे टर्की ने। Which state or UT has launched global encyclopedia of the Ramayana?
रामायण दी ग्लोबल एनसाइक्लोपीडिया किन्ना द्वारा किहड़ी स्टेट या यूटी द्वारा लॉन्च की गई है, तो इसनूं लॉन्च किया गया यूपी द्वारा। ठीक है, बेसिकली अयोध्या याद रखांगे, अयोध्या एयरपोर्ट याद रखांगे। ठीक है, इसी तरीके नाल ग्लोबल एनसाइक्लोपीडिया रामायण दे उत्ते यूपी हर रोज़ न्यूज़ दे विच आ रहा, आपां कई न्यूज़ डिस्कस कीतियां ने, हर एक न्यूज़ इंपोर्टेंट बनेगी। ठीक है, इस तो इलावा जिन्ना स्टेट्स दे विच इलैक्शनस ने, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल, करनाटका, असम, इन्हां दे विचों भी न्यूज़ इंपोर्टेंट बननगी। ठीक है, कि वेस्ट बंगाल हो गया, कर्नाटका, तमिलनाडु हो गया, इस तो इलावा पौंडीचेरी। ठीक है, इस तो इलावा बाकी स्टेट्स भी न्यूज़ दे विच ने डिस्कस करते हैं। तो सब तो पहले तेलंगाना, दो इंपोर्टेंट न्यूज़। तेलंगाना गवर्नर तामिलाई सौंदराजन नूं T20 टॉप 20 ग्लोबल वूमेन ऑफ एक्सलेंस अवार्ड दिता गया शिकागो दे विच। टॉप 20 ग्लोबल वूमेन ऑफ एक्सलेंस अवार्ड शिकागो दे विच। इस तो इलावा तेलंगाना इंडिया का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाएगा 100 मैगावाट कैपेसिटी दी, रामागुंदनम पदपल्ली डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना दे विच। ठीक है जी, किन्ना द्वारा NTPC इसनूं बनाएगी, नैशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NTPC की गल करते हैं, दिल्ली के हैडकुआटर है, इसके हैड ने गुरदीप सिंह इसके हैड ने। ठीक है, हुण एक कन्फ्यूजन होगी सानूं कि कुछ टाइम पहले आप डिस्कस किया कि इंडिया का सब तो वड्डा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ओमकारेश्वर दे विच लगाया जाना है, ओमकारेश्वर MP दे विच। ठीक है, इस तो इलावा वो आप डिस्कस भी किया कि 600 मैगावाट का होएगा, लेकिन वो अनाउंसमेंट की गई है कि होएगा। ठीक है, वो हुण जदों बन के रेडी होएगा उस टाइम की गल होएगी, लेकिन यह जो इसकी जो गल है, इसकी अनाउंसमेंट की गई है कि यह सिर्फ 2 महीनों के ही रेडी हो जाएगा। मार्च चल रहा है, मई दे विच बन के यह रेडी हो जाएगा, इस करके इसनूं इंडिया बिगेस्ट कहा गया। ठीक है, क्योंकि ये तो हजे बन के रेडी होना बाकी है और इसनूं बनाने दे विच टाइम लगेगा। तो उस टाइम तक के लिए इंडिया का बिगेस्ट किहड़ा बन जाएगा, 100 मैगावाट का रामागुंदनम पदपल्ली डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना का। झारखंड की गल करते हैं तो सिमदेगा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम डायरैक्ट पूछा जाएगा। सिमदेगा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम किहड़ी स्टेट दे विच है, तो यह झारखंड दे विच है। होस्ट कर रहा है 2 इंपोर्टेंट इवेंट्स, सब जूनियर वूमेन नैशनल चैंपीयनशिप और जूनियर नैशनल वूमेन्स चैंपीयनशिप हॉकी दी। हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर द्वारा वर्ल्ड फेमस स्वर्णिम इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर ऑर्गेनाइज किया गया मंडी दे विच। ये न्यूज़ अपनी तो स्किप हो गई सी कि जयराम ठाकुर ने इनॉग्रेट किया सी स्वर्णिम इंटरनेशनल शिवरात्रि फेस्टिवल कित्थे, मंडी दे विच। यूपी के लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर का नाम है ब्रजेश पाठक। इन्हों द्वारा ऑर्डर दे दिता गया रिमूवल ऑफ ऑल रिलीजियस स्ट्रक्चर्स ऑन पब्लिक रोड। बेसिकली कि कुछ रोड्स होंगे ने, रोड के जो साइड के उत्ते छोटे छोटे मंदिर बना लेते जाते हैं या छोटी छोटी किसी भी तरीके की रिलीजियस स्ट्रक्चर बनाई गई है, तो उसनूं रिमूव करने के ऑर्डर दे दिते गए हैं ताकि रोड्स नूं एक्सपेंड किया जा सके। जम्मू कश्मीर के रामबान डिस्ट्रिक्ट ने ई सुविधा एप्लीकेशन की शुरुआत की है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ दे विच रही है एप्लीकेशन, क्योंकि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जिसके अंडर प्लंबिंग वगैरह या इलैक्ट्रिक वर्क्स वगैरह नूं मोबाइल फोन्स के नाल कनैक्ट कर दिता गया। ठीक है, रामबान डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर दे ने ई सुविधा एप्लीकेशन की शुरुआत की। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर कर दो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।